Hello students, so today we will study about the agents of pollination and double fertilization. Now we have to study about the agents of pollination. There are basically two types of agent, abiotic agent and biotic agents. Biotic agents are generally animals which is used by majority of the plants, and abiotic agents are wind and water. These are used by small proportion of plants. Now we have to study about the adaptation in the flowers for pollination. First we have to study about wind pollination. Wind pollination is also called as anemophily. It is the most common abiotic pollinators. ये सबसे common abiotic pollinators का method है. The characteristics of the wind pollinated flowers are the pollen grains are usually light and non-sticky. जो pollen grains होते हैं वो usually बहुत light होते हैं और non-sticky होते हैं, so that they can easily carried by air currents, जैसे कि वो हवा में आराम से उड़ सकें. The flowers are not usually of bright colors. They don't have any special odor. Nectars are also absent in this. The flowers are generally small. They have no petals in it. And the stigma and the stamens are generally exposed to the air current. जिसमें stamen और stigma होते हैं, these are generally exposed to the air currents so that they can easily trap the airborne pollen grains. इसमें जो flowers होते हैं वो packed होते हैं inflorescence में, और जो wind pollinated flowers होते हैं these are generally present in a single ovule. इसमें single ovule होता है single ovary में. Example हो सकता है इसका maize, wheat, sugarcane etc. Now we have to study about the adaptation in plants for water pollination. Water pollination के लिए plants में क्या क्या changes होते हैं. Water pollination in plants is also called as hydrophily. In this pollen grains are usually light and unwettable. वो गीले नहीं हो सकते हैं, and these are generally surrounded by the mucilaginous covering. जो pollen grains होते हैं इसमें वो mucilaginous cover से covered होते हैं so as to protect that from wetting, ताकि वो seeds गीले ना हो जाए, इसलिए उसमें एक mucilaginous covering होती है. The stigma इसमें जो होते हैं बहुत long, sticky और unwettable होते हैं. Pollination in water occurs at two places. Pollination जो होता है plants में वो दो प्लेस पे आकर होता है, एक तो सरफेस ऑफ वाटर पे और एक इनसाइड द वाटर पे. द फीमेल फ्लावर्स हैव जनरली लॉन्ग पेडिकल. फीमेल फ्लावर्स के पास एक लॉन्ग पेडिकल होता है सो दैट इट कैन रीच द सरफेस ऑफ वाटर. वो सरफेस के पानी के सरफेस तक पहुंच जाए, इसलिए उसके पास एक लंबा पेडिकल होता है. मेल फ्लावर्स आफ्टर ब्रेकेज फ्लोट्स ऑन द वाटर. मेल फ्लावर्स जब टूट जाता है तो फिर वो प्लांट जो पानी होता है उसके ऊपर फ्लोट करता है, एज वी कैन सी दिस इन लोटस. Example of water pollination flowers are Vallisneria, Hydrilla, Zostra and seagrass. Now we have to study about the adaptations in insect pollinators for pollination. First of all, it is a kind of biotic agent. ये insect pollination is a kind of biotic agent. The characteristics of flowers that is pollinated by insect are the flowers are generally large in size and have colored petals. इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं एंड हैव कलर्ड पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. दीज आर यूजुअली कलरफुल एंड फ्रेगनेंट फ्लावर्स प्रेजेंट. नेक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दैट आर जनरली स्टिकी सो दैट द इंसेक्ट बॉडी कैन स्टिक टू द पॉलन ग्रेन्स ईजिली, एंड द फ्लोरल रिवॉर्ड दैट इज गिवन टू द इंसेक्ट्स आर नेक्टर एंड पॉलन. पॉलिनेशन के बाद इंसेक्ट्स को एक फ्लोरल रिवॉर्ड दिया जाता है, दैट इज नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स. एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आर एमोर्फेलियसिया एंड यूका. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस होता है और ऐसा फीचर होता है प्लांट का विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है एंड इट इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन, और ये क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है. ये क्रॉस पॉलिनेशन को इसलिए इनकरेज करता है सो एज टू प्रिवेंट द लॉसेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. हमारे प्लांट में जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएबिलिटी रहे, इसलिए ये जो सेल्फ पॉलिनेशन उसको ये डिस्करेज करता है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसी भी प्लांट में आने के लिए रोकता है उसको. एग्जाम्पल्स होता है यूनिसेक्सुअलिटी, जैसे कि अगर फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्स फ्लावर्स, अगर हम लोग इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज़ कैसे कर सकते हैं, या तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो और डाइकोमी. डाइकोमी एक ऐसा सिचुएशन होता है जबकि जो मैच्योरेशन टाइम होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का वो अलग अलग कर दिया जाता है. जैसे इसमें दो होते हैं, एक होता है प्रोटोएनियस, दैट इज़ इसमें एंथर पहले डेवलप करता है, और प्रोटोगाइनियस में गाइनोशियम पहले डेवलप करता है. तो अगर ये दोनों सेम टाइम पे डेवलप नहीं करेंगे तब वो सेम टाइम पे रिसेप्टेबल नहीं हो पाएंगे. And third one is self incompatibility.
The failures of pollen grains from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination. pollen grains आता है लेकिन उस पर pollen tube बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसका pollination नहीं हो पाता है and self pollination is prohibited. Now we have to study about the pollen pistil interaction. सारे pollination ये guarantee नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि जो ट्रांसफ़र हुआ है pollen grains का वो सही स्टिग्मा पे हुआ है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो pollen grains होता है वो गलत जगह पे चला जाता है. सो द पिस्टल हैज़ दी एबिलिटी टू रिकोगनाइज. हर पिस्टल के पास एक एबिलिटी होता है कि वो रिकोगनाइज कर सकता है कि जो pollen grains उसके पास आए हैं दैट इज़ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल. सो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल, जो पिस्टल के पास जो एबिलिटी होता है टू रिकोगनाइज द pollen grains falling by its receptacle or rejection result into the continuous chemical dialogue. इसमें एक chemical का injections होता है that between the pollen grains and the pistil. pistil और pollen grains के बीच में एक ये chemical dialogue होता है that is called as pollen pistil interactions. The event of the pollen pistil interactions are, कुछ events होते हैं pollen pistil interactions में, that are the landing of the true pollens on the compatible pistil. ट्रू pollen grains का compatible pistil पे लैंड होना, द germination of pollen and the formation of the pollen tube, whether the pollen grains have released its content or not. मतलब कि अगर pollen grains आ गया उसके बाद अगर pollen tube का formation हो रहा है then only it is a correct pollen grains. pollen tube growth through the style of the pistil towards the ovary. pollen tube का जो growth हो रहा है वो style से ovary की तरफ होना चाहिए. and the entry of the male gamete into the ovule by the process of synergid. जो उसमें synergid होता है that is the process of fusion of male and female gamete in plants is called as synergid. तो वो उसका देखता है कि उसमें सही male gamete ovule में आया है कि नहीं. Now we will study about the artificial hybridization. Artificial hybridization is a method, ये एक method है crop improvement का, in which the crosses are made between the different varieties and genera of a plant. इसमें different varieties of plant को cross किया जाता है so as to get the desirable characteristics in the single superior variety. एक single superior variety of plant में एक सारे desirable characteristics हों, उस लिए ये artificial hybridization किया जाता है. It involves the process of selection of suitable parent. Selection of suitable parent इसमें first step होता है. The second step is if the female parent bears bisexual flowers. अगर इसमें female plant में bisexual flowers होते हैं क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में तो वो श्योर करता है दैट कि उसमें डिज़ायरेबल pollen grains ही जाएँ पॉलिनेशन के लिए. एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो अलाउड टू डेवलप. इसमें फ्रूट्स को भी अलाउ किया जाता है दैट दे कैन डेवलप. दिस हेल्प्स टू अवॉइड अनवांटेड pollen रिजेक्शंस. इससे pollen रिजेक्शंस जो अनवांटेड हो जाते हैं दैट इज़ अवॉइड and it save time also. Now we have to study about the steps in the artificial hybridization. Artificial hybridization में दो step होते हैं. The first one is emasculation and the second one is bagging. Emasculation एक ऐसा process होता है जिसमें एक bisexual flower से anther को remove कर दिया जाता है before the release of pollen grain. pollen grains का release होने से पहले ही anther को bisexual flower से remove कर दिया जाता है with the help of forceps. फॉर्सेप्स की मदद से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स से. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. एंड व्हाट इज बैगिंग? बैगिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स. जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उसको एक कवर कर दिया जाता है एक बैग से जो सुटेबल साइज़ का हो. एक सुटेबल साइज़ के बैग से उसको कवर कर दिया जाता है. दैट इज़ जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर. वो जो पेपर होता है दैट इज़ जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर एंड इट कंटेन्स द फ्लावर रिसेप्टिबिलिटी. इसमें फ्लावर रिसेप्टिबिलिटी मेनटेन रहता है. इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बैगिंग इज़ डन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में जो बैगिंग होता है वो फ्लावर्स के ओपन होने से पहले ही कर दिया जाता है. इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो इमैस्कुलेशन और बैगिंग होता है वे इट इंश्योर्स दैट द फीमेल फ्लावर्स इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन. ये इंश्योर करता है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं contamination से. Hence, artificial hybridization ensures the right type of pollen grains has been transferred to the stigma of the flower. Flower पे सही stigma पे सही pollen grains आया है. It ensures by artificial hybridization. Now we have to study about the double fertilization. Double fertilization is the process that gets started after entering one of the synergid. जब फीमेल गैमेट एक सिनर्जिड में एंटर कर जाता है देन द pollen ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट. जो pollen ट्यूब होता है वो दो मेल गैमेट को रिलीज़ करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड. सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट रिलीज़ करता है विच इंश्योर्स दैट द मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड्स द एंड.
जो मेल गैमेट होता है वो एग की तरफ मूव करे एंड गेट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस। जब वो मेल गैमेट एग से जब फ्यूज़ कर जाता है, इट फॉर्म्स अ ज़ायगोट विच इज़ कॉल्ड एज सिनगैमी। इट रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल। इससे एक डिप्लॉयड सेल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ायगोट। एंड द सेकेंड प्रोसेस इन डबल फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में होता है जो एक बचा हुआ मेल गैमेट होता है दैट मूव्स टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल में, उससे फ्यूज़ करता है एक मेल गैमेट एंड इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज PEN। जब मेल गैमेट और टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई जब मिलते हैं, इट फॉर्म्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज PEN. So in this there are two types of fertilization, syngamy and triple fusion. So it is also termed as double fertilization.